Namaste, Ashish. Welcome back to our weekly podcast. I am so happy we've released 4 to 5 podcasts already on the channel that people can watch on different sectors. And now we are continuing with the weekly. It's been fantastic you having on the show. We're getting positive results. I can't believe I've been seeing people who speak so highly of you and they love you so much. So welcome, sir. Thank you so much. And I'm very happy that people are enjoying our channel. And I've been, telling people about your channel, Inner Habit with Shruti. I always tell them, go and watch that channel. It's a very interesting channel. And I've also told that I'll be coming on this channel. My weekly predictions would be on Inner Habit with Shruti Doctor. Thank you so much. But welcome. We are going to talk about this week. Everybody is excited to hear from you. So let's start with first of all, the Nifties of the world and the S&P 500s. So let's start with Nifty 50, Bank Nifty, and S&P 500. Tell us what's happening in the stock market. Okay, now we start with Nifty first, ma'am. And let me just give a word of caution to your viewers, your audience, that this is a prediction based on astrology and numerology. I am not a chartist. I am not an economist. I am not a stock market expert. I am no one. I am just an ordinary person like y'all who does astrology and numerology since the last 34-35 years. This is my introduction to y'all, those who don't know me. So I would advise your people, मतलब आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी तरह का ट्रेड मेरी भविष्यवाणी सुनकर प्लीज नहीं ले. हाथ जोड़ के विनती है जी. Shruti, ma'am, would you like to add something here? I absolutely agree with you. We should not be doing that. Ashish ji comes here to give you an analysis of the week. वो आते हैं आपको यहाँ पे ये चैनल पे एनालिसिस देना पूरा वीक का. फिर आपको वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देख के यू हैव टू स्पीक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर. ऐसे मत समझिए कि रातों रात आपको पैसे मिल जाएंगे because we are speaking about it. We are talking about planetary impacts here. Exactly, Shruti ji. We are looking at the next week, and next week is 17th to 21st of August. Okay. अभी क्या है, निफ्टी अगले हफ्ते 23,818 से लेकर 24,596 तक ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को, तो आप निफ्टी को 24,288 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे जी. निफ्टी क्या है, 23,818 से लेकर 24,596 तक ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को, तो आप निफ्टी को 24,288 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे जी. ओके. तो अब निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं मैम. बैंक निफ्टी अगले सप्ताह 56,511 से लेकर 58,296 तक ट्रेड कर सकता है इसके बीच में. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप बैंक निफ्टी को 57,414 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. फ्रॉम 56,511 टू 58,296. और जब मार्केट्स बंद होंगे अगले शुक्रवार को बैंक निफ्टी, तो आप बैंक निफ्टी को 57,414 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. S&P 500 जो है वो 7,722 से लेकर 7,829 तक ट्रेड कर सकता है. और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप S&P 500 को 7,749 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे. S&P 500 can trade between levels of 7,722 and 7,829. And when the markets close next Friday, you could see S&P 500 trading above a level of 7,749. Is that clear, Shruti ji? Ashish ji, that is fantastically clear. We will now move on to our precious metals. Great. Shruti ji, let's cover gold first. पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं जी. 4,244 से लेकर 4,413 तक ट्रेड कर सकता है गोल्ड. और मार्केट्स जब बंद होंगे शुक्रवार को,
तो आप गोल्ड को 4280 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। 4250 to 4430, दिस इज द ट्रेडिंग रेंज ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। और जब मार्केट्स बंद होंगे अगले सप्ताह शुक्रवार को, तो आप गोल्ड को 4280 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। सिल्वर $59.80 से लेकर $66.90, और जब मार्केट्स बंद होंगे अगले शुक्रवार को, तो आप सिल्वर को $63.35 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। $59.80 to $66.90, that is the trading range of silver for the next week. And when the markets close next Friday, आप सिल्वर को $63.35 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। तो अब कॉपर मैम $6.36 से लेकर $6.77 तक ट्रेड कर सकता है कॉपर नेक्स्ट वीक। और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप कॉपर को $6.51 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। $6.36 to $6.73, and when the markets close next Friday, you could see copper trading above a level of $6.51. अब आता हूं क्रूड ऑयल WTI के ऊपर मैम। जी बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल। इस वीक तो मैम $5 चला गया ऊपर, $5-6, जैसे मैंने बोला था लास्ट वीक। So it worked out. So your predictions were on track. Oh yes, क्रूड ऑयल WTI मैम। तो नेक्स्ट वीक के लिए भविष्यवाणी ये है कि $79.66 से लेकर $86.68 तक ट्रेड कर सकता है। क्रूड ऑयल WTI की बात कर रहा हूं। और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप क्रूड ऑयल WTI को $82.15 के ऊपर बंद ट्रेड होते हुए देख पाएंगे। $79.66 to $86.68, crude oil WTI, the trading range of crude oil WTI. And when the markets close next Friday, जब अगले शुक्रवार मार्केट्स बंद होंगे, तो आप क्रूड ऑयल WTI को $82.15 के ऊपर बंद होते हुए देख पाएंगे। 15 नेचुरल गैस मैम Yep. $2.60 से लेकर $2.88, और जब मार्केट्स बंद होंगे शुक्रवार को, तो आप नेचुरल गैस को $2.70 के ऊपर ट्रेड होते हुए देख पाएंगे। $2.60 to $2.88, that would be the trading range of natural gas. And when the markets close next Friday, you could see natural gas trading above a level of $2.70. Thank you, Ashish ji. That is actually a fantastic analysis. मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि other than the Nifty and Bank Nifty, I think because of the cash issues that are currently happening, Ashish ji's predictions were all spot on for last week. Ashish ji, I want to ask you, next week के लिए हमारा safe bet कौन सा रहेगा? पैसे कहाँ पे हम कमा पाएंगे? मैम नेक्स्ट वीक के लिए सबसे सेफ बेट रहेगा कॉपर, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कॉपर को $6.36 पे तक गिरने की। अगर वहां पे आप लोगों को मिले ना, तो वहां पे आप लोगों को एक पोजिशनल ट्रेड लेनी चाहिए कॉपर के ऊपर। कॉपर सबसे, क्योंकि क्या है नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में भी वोलेटिलिटी रह सकती है नेक्स्ट वीक, मगर कॉपर क्योंकि एक स्टेडीली ऊपर जा रहा है, रैली कर रहा है। देखिए 10-20 सेंट तो ऊपर नीचे होगा ही मैम, राइट? मतलब कोई भी इंडेक्स, कोई भी कमोडिटी ऊपर नीचे तो थोड़ी बहुत करेगी, तो कोई भी लीनियर फैशन में नहीं चलता कोई भी चीज। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट वीक का बेट होना चाहिए वो पोजिशनली, दैट शुड बी अराउंड, इट वुड बी अबाउट at around $6.36. You should take a position in copper. Okay. And are we still not happy with the Nifties? And the reason I'm asking is क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से सेक्टर्स लोगों के लिए अच्छा रहेंगे नेक्स्ट वीक इन निफ्टी। लोग बोलते हैं डिफेंस, लोग बोलते हैं आई डोंट नो, so many things. So आपको क्या लगता है? So many. मैम अभी मैं एक बात एक आपके चैनल पे बताना चाहूंगा। मैं अभी तक डिफेंस में बुलिश था, मगर आफ्टर 5th of September एक ऐसा ग्रे चेंज हो रहा है जिसमें डिफेंस के स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो मैं एक कॉशियस, मतलब आपके व्यूअर्स को कॉशियस कर देना चाहता हूं कि मतलब कि ज्यादा डिफेंस मत करिए, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से खाली डिफेंस ही डिफेंस चल रहा है। हाँ, स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं, नो डाउट,
ये बात मैं नहीं मतलब मैं नकारता नहीं हूं इस बात को, मगर अब 5th of September के बाद, नॉट ऑन द इमीडिएटली आफ्टर 5th of September, बट ग्रेजुअली आस्ते आस्ते करके डिफेंस स्टॉक्स नीचे जाने की तैयारी करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफेंस में आप लोग सेल आउट करके बैठ जाइए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे स्टॉक्स गिरे, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स, डिफेंस म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स गिरे, उसमें आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें आफ्टर 5th of September 2026। ओके, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर्स अच्छा रहेगा लोगों के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए बैंकिंग और दूसरा रियल्टी अच्छा रहेगा। दो सेक्टर। आपका टीसीएस का क्या हो रहा है सर? मैंने सुना कि टीसीएस इज इन द न्यूज के अभी ले लो, फिर लोगों ने ले लिया, फिर टीसीएस का हुआ क्या है? मैम, लोगों ने बहुत पैसा कमाया मैम टीसीएस में। जैसे मैंने बोला ना, जैसे भी मैंने बोला, ऊपर चलने लग पड़ा। मैंने 2310 में बोला था, और अगर आज आप मेरा लाइव प्रोग्राम जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सुनेंगी, तो वहां पे लोगों ने मुझे बोला कि 70-80 रुपए उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। वेरी गुड। मैम, एक और बात बताना चाहूंगा। मैं 2020 में जब कोविड था, तो मैंने कई स्टॉक्स के नाम बोले थे जो कि ऑलरेडी 5-5 गुना, 10-10 गुना हो गए हैं ऑलरेडी अभी। आई कैन इमेजिन। टाटा मोटर्स मैंने बोला था 80 रुपए में, 1000 रुपए हो गया मैम। क्या बात है सर। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक्स मैंने बोले लोगों को। तो लेट अस सी क्या होता है। देखिए, मैं तो कोशिश करता हूं कि आपके ऑडियंस, हम लोगों के ऑडियंस को पैसा कमाने का मौका मिले स्टॉक मार्केट से, क्योंकि ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में जल्दीबाजी नहीं होती है मैम। इट टेक्स टाइम, राइट? तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई कसीनो तो है नहीं, ये कोई जुआ का अड्डा तो है नहीं, जहां पर आप पैसा लगाएंगे और कल आज $100 लगाएंगे, कल 500 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नो क्विक मनी टू बी मेड। No quick money to be made in the stock markets. And if y'all are thinking that y'all are going to earn money quickly in a jiffy, then y'all are wrong. Then y'all are in the wrong business. Then y'all are in the wrong business. I totally agree. But on that note, Ashish ji, I want to thank you for these wonderful predictions for next week. I will pull down my notes because next week we're actually doing the ETFs as well. So viewers, we'll have our ETF podcast out. We're doing the 5 ETFs that Shreya Ashish ji mentioned in a previous podcast. उन्होंने हमारे साथ 5 ETFs के बारे में बात की थी, तो वो भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक ही निकालने वाले हैं. So stay tuned. Thank you, Shruti ji, for having me. Thank you so much. I was going to say thank you, Ashish ji. You've been so patient and it's been lovely having you on the show, and I can't wait to do more. Perfect, ma'am. Let's wait now. Let's wait for the big predictions to come true. All my predictions about gold, silver, Nifty, which you have made. Absolutely. Let's wish for the best. Thank you so much, ma'am.